Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my class. Student, we are just continuing our existing lesson, the human eyes and colorful world. Okay, power of lens. What is power of lens? I wrote the definition on the board. Already you can see the degree of converging or divergence of light ray that can be achieved by a lens is expressed in terms of its power. देखिए स्टूडेंट, this thing already wrote in your like English language. I will explain in Hindi. Okay, ये जो हमारे अंदर हमारे जो आँख है, आँख के अंदर जो लाइट रे क्या हो रही, अचीव हो रही है, यानी पहुँच रही है, हासिल हो रही, तो उन्हें एक्सप्रेस होती किसमें, इन टर्म्स ऑफ इस पावर में एक्सप्रेस होती, इसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। जैसा कि हमारा आई लेंस यूजुअली, जैसा कि आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है, तो जैसा ही आपका लाइट जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, यूजुअली कन्वर्ज होती लाइट। ओके, बट कुछ केसेस ऐसे रहते हैं सिर्फ एक केस में आपको डाइवर्ज होती, तो जो कन्वर्जन डाइवर्जन है लाइट रे का, दैट कैन अचीव बाई लेंस, यानी लेंस को जैसा ही हासिल हुई इस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, इसके पावर के ऊपर एक्सप्रेस्ड होती है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। जो फोकल लेंथ का जो उल्टा रहता है रेसिप्रोकल, वो पावर ऑफ लेंस रहता। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f मीटर। ठीक है, और P इज इक्वल्स टू लाइक एक्चुअल फार्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. It is denoted by D. So this is a small topic related to our power of lens. You need to copy from here to here. Okay. Hope you have copied the topic power of lens. Now we will going to solve one problem, a small problem related to the power of lens. As I am writing the question on the board, as you can see here. Okay, doctor advise to use 2D lens. Okay, next, what is it focal length? Okay, that means doctor is recommending to use you like 2D power lens. What is the focal length? Solution. Okay, as we know, what we know, given. Okay, given power, you can write power is 2D. Okay, we know that, what we know that, student, nothing sir, kaiku nothing, सब मालूम. We know that P is equals to like 100/f. Okay, I am going to write 2 is equals to 100/f. Since I am writing P is equals to 2, don't confuse student, here D is nothing but units of the power. Okay, now F is equals to what, it will be 100/2, so implies F is equals to 50 centimeter, or you can write it as F is equals to 0.5 meter. Student, in examination the examiner might give you like meters or centimeters, so you need to be concentrate, express what is it focal length in meters. If you be given like this, means you need to write like, you need to convert centimeter into meters, and sometime what it will ask you, what is its focal length, just you can write F is equals to 50. This is a small problem, it might ask you in 2 marks. Okay, 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता, आप बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, कॉपी कर सकते, आई थिंक विद इन 2 मिनट्स. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस. Hope you have copied on problem also. Our next topic is myopia. Okay, myopia, it is one of the important topic for your, not only for examination point of view, but also for our knowledge related to our human eyes. So I will going to read something about myopia. Some people cannot see object at long distance but can see the near object clearly. This type of defects in vision is called myopia. It is also called as nearsightedness. For these people, the maximum focal length is less than 2.5 centimeter. In such case, the rays coming from the distinct object after refraction through the eye's lens form an image before the retina as shown in the figure 5a and 5b. देखिए, इसके लिए हम थोड़े पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मायोपिया किसको बोलते हैं
कि एक ऐसी विजन है जहाँ पे ह्यूमन क्या कर सकता, दूर की नज़र नहीं देख सकता, तो सिर्फ करीब की नज़र देख सकता उन्हें, तो हम इसको क्या बोल देंगे, करीब की नज़र देख सकता, तो इसका नाम हम क्या ले लेते, नियर साइटनेस। ठीक है, क्योंकि यानी नियर की देख सक रहा, तो इसका और एक नाम है नियर साइटनेस। ठीक है, और इस डिफेक्ट में जो फोकल लेंथ होती है हमारी जो ह्यूमंस की, वो क्या रहेगी, फोकल लेंथ विल बी लेस देन 2.5। ठीक है, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज विल फॉर्म्स बिफोर रेटिना, जो रेटिना है उससे पहले उसकी इमेज फॉर्म हो जाती। ठीक है, सो अ हेल्दी पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट at all distance more than 25 centimeter clearly, but a person with myopia can see object clearly up to the certain distance. Let the extreme point from where an object appears clearly to a person with myopia be m। देखिए अब यहाँ पे क्या है बोल, तो जो एक पर्सन है जो हेल्दी आइस है, उस हेल्दी आइस वाला क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर से लेके अप टू दी इन्फिनिटी उन्हें ठीक तरीके से देख सकता। जो हेल्दी पर्सन रहता, जो 25 सेंटीमीटर से उसको विजन दिखना शुरू होगी, पूरा अप टू इन्फिनिटी तक देख सकता। लेकिन मायोफिया में क्या होता कि एक पर्सन क्या करता, एक पॉइंट से देखना शुरू करके क्या करता, एक सर्टेन पॉइंट तक ही अच्छा देख सकता, तो वो पॉइंट को हम एक m मार्क देंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट m और इन between m and point of least distance of distinct vision L, the eyes can form an image on the retina. See the image 5 and C. This point M is called far point. देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाता हुआ चलो। देखिए फर्स्ट केस है हमारा, ये किसी की ह्यूमन आइज है। ओके, नॉर्मली ह्यूमन आइज स्पेरिकल होती जैसा आपको पता ही है, और इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन शार्प होता। तो मायोफिया डिजीज़ में क्या होता है, जो लाइट जो आती है ना, तो हमारे पास लाइट इधर से आएगी, आके वो कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज कहाँ पे होगी, डायरेक्ट आपको रेटिना पे कन्वर्ज होती। तो ये हो गई नॉर्मल आइज हो गई। ठीक है, नॉर्मल आई हो गई। मायोफिया में क्या होता है, देखिए सेम ये आपका एक्चुअली आई एम ड्राइंग रफली स्टूडेंट, डोंट टेल सर आपका डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं रह रहा, जो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आइज आके फॉल होगी, फॉल होके क्या होगी, इधर से फॉल हो जाएगी वो, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे कन्वर्ज, रेटिना पे नहीं हो रही, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रही। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मायोफिया बोलते हैं। तो मायोफिया में देखिए अब सपोज एक पॉइंट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे m लगा लेता हूँ। ठीक है, मायोफिया वाला पर्सन ये 25 सेंटीमीटर से विजन देख रहा m तक ही देख रहा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फार पॉइंट कहलाएगा। किसके लिए फार पॉइंट कहलाएगा, ये पर्सन जो मायोफिया से डिफेक्ट कर रहा, तो ये इसका फार पॉइंट हो गया। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द आई लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड फार पॉइंट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको हमारी ह्यूमन आइज की रेटिना इमेज फॉर्म करती, उसको हम फार पॉइंट कहते हैं। तो नॉट ओनली एक्चुअली अभी मैं आपको बोला था कि मायोफिया के पर्सन से रिलेटेड है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दी मायोफिया पर्सन, ये हर एक के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होता कि हमारे पास कोई चीज़ है, हम एक दूर तक देख सकते, वो होते होते क्या होता, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता हुआ। हालांकि वो चीज़ अगर कुछ भी एग्जिस्ट हो, उसका छोटा होते होते पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा ह्यूमन आइज की विजन का तरीका है ये। तो फार पॉइंट के बारे में मैं फिर से खुद बोलता हूँ, अगर आप चाहे तो लिख सकते, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द आई लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड फार पॉइंट। यानी कि जहाँ तक रेटिना हमारी वो कर सकती है, इसको हम फार पॉइंट कहते हैं। तो मायोफिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्हें फार पॉइंट तक जहाँ पे उसको इमेज बननी चाहिए थी नहीं बनेगी, उसको फार पॉइंट से यानी कि पहले से उसको दिखने में कमी पेशी होती है, दिखने में उसका विजन मुश्किल हो जाता है। तो ये मायोफिया है। तो मायोफिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, टू करेक्ट दी मायोफिया, अगर हमको मायोफिया को करेक्ट करना है तो हम उनके यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही, ठीक है, कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट पे आके यहाँ पे रुक जा रही, तो अब यहाँ से लाइट को अगर हम कन्वर्ज करेंगे तो और छोटे उसमें यहाँ पे हो जाता उसका पॉइंट, जो कन्वर्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमको लाइट को फाड़ना है, डाइवर्ज करना है, ताकि वो लाइट थोड़ा आगे जाके गिरे,
ठीक है, आगे उसका लाइट जाके गिरे। वी यूज कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ करते, देखिए अब आपको ये बोर्ड का दिस पार्ट क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारी ह्यूमन आइज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉनकेव लेंस को लगा देंगे, जैसा ही हमने यहाँ कॉनकेव लेंस को लगाया, यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। आने के बाद लाइट यहाँ से आके फिर ये डाइवर्ज होती, थोड़ा लाइट डाइवर्ज होने के बाद सही पॉइंट पे जाके वो फॉल होती, तो उसी की वजह से हम कॉनकेव लेंस। इसका एक्चुअली परफेक्ट डायग्राम मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ कि मायोपिया किस तरीके से करेक्ट होती है, आप देख सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। एग्जाम में आपको आइदर इट माइट आस्क यू इन 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या 4 मार्क्स में भी पूछ सकता। अगर 2 मार्क्स में पूछा व्हाट इज मायोपिया, हाउ कैन यू करेक्ट दी मायोपिया, बोलता आप 2 मार्क्स में क्या लिखना है, मायोपिया इज द डिफेक्ट विथ विच पर्सन के नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फार पॉइंट, यानी फार पॉइंट से आगे रहा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। दिस डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटनेस। इतना आप लिख दिए। उसके बाद टू करेक्ट मायोपिया वी यूज दी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हम यूज़ कर रहे हैं बोल के आप इतना लिख के, अगर आप चाहे तो डायग्राम छोटा सा डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इतना तो आपने लिख लिया था 2 मार्क्स के लिए। अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा तो लिखना भी है, डायग्राम भी उतारना है और ये थोड़े पॉइंट्स लिखना है कि मायोपिया इज नोन एज नियर साइटनेस, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज इज लेस देन 2.5, इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना इन मायोपिया। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखना कि इमेज विल फॉर्म इन मायोपिया। मायोपिया में क्या होता, इमेज रेटिना से पहले होती। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक 4-5 पॉइंट आप थ्योरी के लिख के डायग्राम उतारिए, तो आपको पूरी तरीके से ये आंसर कंप्लीट होता मायोपिया का 4 मार्क्स को लेके। नाउ आई एम जस्ट if you want copy this roughly about myopia, and for answer you can go through with your reader or workbook what material you are using, you can go through it. Okay, now we will just continue, but I am placing one diagram, fair diagram related to the myopia, how to correct the myopia. Now we will continue our next topic. Okay, hypermetropia. Now about my hypermetropia. Hypermetropia same it is known as farsightedness. Okay, next in this what will happen, usually person cannot able to see the object before far point. Okay, जो far point से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, person cannot able to see ऑब्जेक्ट बिफोर फार पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो फोकल लेंथ हो जाती है पर्सन की वो मोर देन 2.27 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो फार पॉइंट से बियॉन्ड है ये देख नहीं सकता। नेक्स्ट है मायोपिया को लेके, टू करेक्ट द मायोपिया वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करेंगे मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। नाउ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो लुक एट हियर, दिस इज आवर आइस, रफ डायग्राम आई एम ड्राइंग, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से फॉल हो रही है, लाइट इज फॉलिंग हियर, ओके, आफ्टर फॉलिंग इट विल कन्वर्ज लाइक हियर, इट विल कन्वर्ज बियॉन्ड रेटिना। रेटिना के बाहर इमेज बनाने की देखता है ये, तो रेटिना के बाहर अगर इमेज बनेगी तो क्या होगा, इट विल नॉट वर्क, यहाँ पे इमेज सही नहीं बनती। तो इसको आप क्या करेंगे, सेम आपको एक लेंस का यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसा ही आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे तो लाइट सीधा जाके आपको रेटिना के ऊपर गिरेगी, जिसकी वजह से इमेज अच्छे से बनता है। तो ये हो गया हमारी हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़। इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ मैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस। A person with hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see the object at near distance because the minimum focal length of the eye lens for the person of hypermetropia is greater than 2.27 centimeter. In such case, the light
ray coming from a nearby object after refraction at light lens forms an image beyond the retina as shown। जैसा कि अभी मैं बोला था कि हाइपरमेट्रोफिया फार साइटनेस है, पर्सन के नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट बिफोर के, फोकल लेंथ उसकी हो जाती 2.27 सेंटीमीटर से, इसमें हमको कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है। ये पूरा वही आपको है आपके जो भी कंसर्न मटेरियल है इसमें। तो हाइपरमेट्रोफोबिया के बारे में अगर आपको 2 मार्क्स में पूछता है तो आप क्या लिखना पड़ेगा? हाइपरमेट्रोफिया इज द डिजीज विथ विच पर्सन के नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बिफोर फार पॉइंट आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोफिया वी नीड कॉन्वेक्स लेंस। और उसके बाद 2 मार्क्स में पूछने पे एक छोटा सा डायग्राम भी डाल दे सकते हैं। 4 मार्क्स में अगर पूछा तो सेम, hypermetropia is a disease which with person cannot able to see the object before far point scare. This is also known as far sightedness. The focal length of the person which is suffering from hypermetropia is 2.27 centimeter. To correct this disease, one can use convex lens. To explain the hypermetropia, I am drawing few diagrams as shown बोल के 4 मार्क्स में पूछा तो एक 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स लिख के एक डायग्राम उतारिए, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा व्हाट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोफिया। देखिए और एक टाइप की डिजीज़ है जिसका नाम है हमारे पास, पहले आप ये रफली कॉपी कर लीजिए इतने पॉइंट्स। वन मोर थिंग, मैं आपको एक थोड़ा डायग्राम लगा देता हूँ हाइपरमेट्रोफिया का। Our next type of defect is nothing but I am writing the name here, प्रिस्बायोफिया। इसका नाम है प्रिस्बायोफिया, ठीक है। प्रिस्बायोफिया क्या रहता है थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ। प्रिस्बायोफिया इज अ विजन डिफेक्ट when the ability of accommodation of the eye lens usually decreasing with aging. For most people, the near point gradually reduce away. They find it difficulty to see the nearby object clearly and distinctly. देखिए प्रिस्बायोफिया एक ऐसा विजन का डिफेक्ट है जो आपकी आई लेंस के अंदर एक एबिलिटी रहती जो अपने आप को उन्हें एडजस्ट कर सकता। और ये क्या होता, ये यूजुअली जो डिजीज़ होती एजिंस, यानी कि जब इंसान ओल्ड की तरफ होता रहता, बुढ़ापे की तरफ वो होती। और इस डिजीज़ में क्या होता कि जो करीब के ऑब्जेक्ट देखने के लिए लोगों को मुश्किल होता। तो दिस हैपेंड ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकिंग of ciliary muscle and diminishing flexibility of eye lens. This effect can be seen in aging people. Some of the persons may suffer from both myopia and hypermetropia with aging. Any person उसका जब एज कम नॉट बढ़ते रहती जब उसकी एज, तो उसके अंदर आई के एबिलिटी जो मजल्स है वो कमज़ोर वीक होते रहते, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइज जो तेज हमारी आइज़ के अंदर हम इधर उधर करते तो उसकी स्पीड कम होते रहती। उसकी वजह से कुछ पर्सन को क्या होता, मायोफिया हाइपरमेट्रोफिया एट ए टाइम होता। तो प्रिस्बायोफिया का और एक मीनिंग क्या है, दिस इज़ द डिजीज़ मायोफिया प्लस हाइपरमेट्रोफिया, दो मिला करके जो रहते हैं वो आपको प्रिस्बायोफिया है। टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन वी नीड बाईफोकल लेंस। इसको हम ये डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हम यूज़ करते लेंस उसका नाम है बाईफोकल लेंस, विच आर फॉर्म यूजिंग बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव। ये फॉर्म होता कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों को मिलाकर। इट्स अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव एंड लोअर विथ कॉन्वेक्स। जो उसका अपर पोर्शन रहता है, ठीक है, अपर पोर्शन कॉन्केव का रहेगा, और उसका जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स का रहता। दोनों ही लेंसों से मिला के एक स्पेशल टाइप की ग्लास बनाते द पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोफिया, ठीक है। ये आपको प्रिस्बायोफिया के बारे में एक छोटी सी टॉपिक है। यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक्चुअली अक्सर एग्जामों में ये नहीं पूछता, फिर भी एज एन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस मैंने पढ़ा दिया। अगर प्रिस्बायोफिया बोलते तो आप क्या लिखना है, प्रिस्बायोफिया इज अ विजन डिफेक्ट when the ability of accommodation of eye usually decreasing with ages. In this type of disease, persons may suffer from myopia as well as hypermetropia. To correct this disease, one have to use like bifocal lens, which is made up of concave lens as well as convex lens. Concave lens consist of upper portion and convex lens consist of lower portion. स्टूडेंट इसकी जो थियरी पार्ट है ये भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। और एक टाइप का डिजीज़ होता है स्टूडेंट जिसको हम कैटरेट्स बोलते हैं। कैटरेट्स एक्चुअली हमारे पोर्शन में नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे डिजीजेस हैं। कैटरेट्स क्या होता है,
आप ना कभी सुने होंगे आपके बुजुर्गों में किसी को आँखों में मोतिया आ गया, तो आँख के अंदर एक क्या बोलते हैं स्पाइडर जाल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता, जाल लाइक यानी कि ट्रैप जैसा आँख में फॉर्म हो जाएगा, वाइट कलर का रहेगा। और कभी कभी वो ट्रैप क्या होता है, घट बीच में एक आपको पॉइंट साइज का वाइट कलर का वो ले लेगा, तो वो कैटरेट्स होता। तो कैटरेट्स के लिए एज ऑफ नाउ सिर्फ सर्जरी ही उसका इलाज है, यानी कि उसको ग्लासेस नहीं रहेंगे, उसको सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करके वो कैटरेट्स को रिमूव किया जाता। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया है, यानी कि डिजीजेस को लेके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया एंड कैटरेट्स। और इससे पहले हमने पावर ऑफ लेंस भी पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स ऑन टुडेज सेशन और टुडेज पार्ट। हम आगे और बहुत सारा इसके बारे में श्योरली डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव लर्न, वी लर्न फ्यू थिंग्स आई वांट टू रिवाइज विथ अस। वी लर्न लाइक पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं लर्न कर लिए आप, और इसके ऊपर आपने एक छोटा सा प्रॉब्लम भी करा था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी लर्न मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नेक्स्ट हमने लर्न किया था प्रिस्बायोपिया, और कैटरेक्ट्स एक छोटी सी टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बोले थे। ये हमने पूरा डिटेल में आज के सेशन में, इस सेशन में लर्न किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन। होप you enjoy my session. Really thanks to my all students as well as viewers, those who are watching this Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. This is Sayyid Rashid. Have a great time.